Welcome to this lecture on nuclear physics. Today we will discuss the nuclear forces and then we will discuss the mass defect and binding energy. Let us first discuss nuclear force. आप लोगों को पता है जो हमारा न्यूक्लियस है, this nucleus is a small central core present inside the atom. Small central core present inside the atom. आपको यह भी पता है कि जो ये न्यूक्लियस है, it is made up of protons and neutrons. Protons and neutrons. आपको पता है कि दो चार्जेस अगर होंगे Q1 और Q2, अगर उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगी तो उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ये लाइक चार्जेस होंगी तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा. चूंकि न्यूक्लियस जो है, इट इज अ स्मॉल स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द एटम. देयरफॉर न्यूक्लियस में जो ये प्रोटॉन्स होंगे, बोथ ऑफ देम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयरफॉर दीज प्रोटॉन्स they exert a large force of repulsion on each other. Then the question arises, how these nucleons are bound together inside this small nucleus. चूंकि ये न्यूक्लियस जो है, इसमें प्रोटॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लिहाजा जो इनके दरमियान कूलम रिपल्शन होगी, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा. नाउ अगर वो ज्यादा होगा तो ये प्रोटॉन्स जो है ये कैसे फिर इस न्यूक्लियस में बाउंड है? हाउ दे आर होल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस? दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन between the nucleons, this is not responsible for binding the nucleons together inside the nucleus. Secondly, प्रोटॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है, लिहाजा इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. देयर मे बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. यहां पर पहले हम देखेंगे कौन कौन फोर्स होगा न्यूक्लियस में. नंबर 1 होगा कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन. कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन जो जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स जो है, दे एक्सर्ट लार्ज Coulomb force of repulsion on each other due to small distance between them. Number 2, इनके दरमियान होगा gravitational force of attraction. Gravitational force of attraction यानी जिससे ये न्यूक्लियन जो है जरा हमें लगेगा ये बाउंड है, मगर this gravitational force of attraction, this is the weakest force. Therefore this gravitational force of attraction, this is not responsible for binding these nucleons together inside the nucleus. भाई न्यूक्लियस में आपने देखा प्रोटॉन्स के दरमियान लार्ज रिपल्शन है, जिसकी वजह से अगर हम कहें ये प्रोटॉन्स जो है दे शुड नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ वहां एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो है दे शुड रिमेन इन द न्यूक्लियस, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कूलम रिपल्सिव फोर्स से बहुत कम है. Because gravitational force is the weakest force. Therefore, gravitational force of attraction, this is not responsible for binding the nucleons together inside the nucleus. क्योंकि ये nucleons जो है, they are bound inside the nucleus. Now, how these nucleons are bound inside the nucleus? There is a third kind of force which occurs only inside the nucleus. That force is called as a nuclear force. It is the strongest short range force. Nuclear force is the strongest force in the world. Now inside the nucleus what happens? These nucleons present in the nucleus, they are bound inside the nucleus by means of a strong short range attractive force, and that attractive force is called as nuclear force. So what is the nuclear force? Nuclear force is a strong attractive force existing between the nucleons inside the nucleus, by which these nucleons they remain bound together inside the nucleus. ये strong attractive force है. It's this nuclear force जो है, this is 10 raised to power 36 times greater than the Coulomb force between the nucleons. जो Coulomb force इतना ज्यादा है, लेकिन nuclear force जो है, it is 10 raised to power 36 times greater than the Coulomb repulsion between the two nucleons. It is 10 raised to power 38 times greater than the gravitational force of attraction between the two nucleons. 10 raised to power 36 times, it matters.
So what is the nuclear force? It is a strong attractive force. It is a strong attractive force, a strong attractive and a short range force which exists inside the nucleus. ठीक है ना? Which binds these nucleons together inside the nucleus. So what is the nuclear force? A strong short range attractive force which binds the nucleons together inside the nucleus. That force is called as a nuclear force. ठीक है ना? It is the strongest force in nature. It is a short range force. That means it acts only within a distance of 10 raised to power minus 15 Fermi. Minus 15 meters. That means 1 Fermi. Outside the nucleus there will be no nuclear force. ये न्यूक्लियन जो है ये न्यूक्लियस में बाउंड है इसी न्यूक्लियर फोर्स के जरिए. Now this nuclear force it is of 3 types. Number 1, proton nuclear force. It exists between 2 protons. Proton nuclear force. Number 2, neutron nuclear force. Neutron nuclear force. Number 3, proton neutron nuclear force. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये 3 किस्म का है. प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स यानी जो 2 प्रोटॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट हो जाएगा. नंबर 2, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स जो 2 न्यूट्रॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट हो जाएगा. नंबर 3, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स. So this nuclear force is of 3 types. Nuclear force existing between 2 protons, nuclear force existing between 2 neutrons, nuclear force existing between a proton and a neutron. So there are 3 kinds of nuclear forces existing inside the nucleus. Now let us discuss properties of these nuclear forces. Number 1, nuclear force जो होता है, nuclear force is a charge independent force. Is a charge independent force. Charge independent force. जो पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की ये है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. देखो भाई हमारे पास 3 किस्म के न्यूक्लियर फोर्स है. कौन कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन. देखो कूलम फोर्स जो है वो है चार्ज डिपेंडेंट फोर्स क्योंकि उसमें एक Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अगर एक चार्ज 0 होगी फोर्स 0 होगा. दैट्स अ चार्ज डिपेंडेंट फोर्स. यहां देखो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जो ये तीनों फोर्सेस है इनकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज सेम. द 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स, neutron nuclear force and proton neutron nuclear force, they are of the same strength. जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा. ये देखो ये 2 चार्ज्ड न्यूक्लियस के दरमियान है, ये 2 न्यूट्रल न्यूक्लियस के दरमियान है. ये एक चार्ज्ड न्यूक्लियन और दूसरे अनचार्ज्ड न्यूक्लियन के दरमियान है. यहां पर दोनों न्यूक्लियन को चार्ज है, यहां पर दोनों को चार्ज है, दोनों न्यूक्लियन चार्जलेस है. यहां पर एक की चार्ज है एक की चार्ज नहीं है. लेकिन देखने में आया है कि जो ये न्यूक्लियर फोर्स है जितना 2 चार्ज्ड न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स है इतना ही 2 किन के दरमियान 2 अनचार्ज्ड न्यूक्लियस के दरमियान है. इसका मतलब है ये न्यूक्लियर फोर्स जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स है ये है क्या? शाबाश, इट्स अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. Number 2, it is a strongest force in nature. It is the strongest force in nature. जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया में. अगर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दैट इज अ न्यूक्लियर फोर्स. क्यों? ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज 10 raised to power 36 times greater than कूलम फोर्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियर फोर्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान होता है ये होता है 10 raised to power 36 times greater than the Coulomb repulsive force between the 2 nucleons. Number 2, ये होता है 10 raised to power 38 times greater than gravitational force between the 2 nucleons. Gravitational force between the 2 nucleons. 2 न्यूक्लियस के दरमियान अगर हम कूलम रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो उससे कितना ज्यादा होगा? 10 raised to power 36 टाइम्स. अगर 2 न्यूक्लियस के दरमियान हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे लेकिन
वो जो न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियंस के दरमियान होगा, दैट विल बी 10 raised to power 38 times greater than that gravitational force. लिहाजा this nuclear force, it is the strongest force in nature. नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इट्स a short range force. नंबर वन, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force. Short range क्यों है? ये खाली एक्ट होता है within a distance of 10 raised to power minus 15 meters, यानी 1 Fermi, यानी size of nucleus. इसका मतलब है जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये खाली एक्ट होता है when these nucleons are present inside the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर दो न्यूक्लियंस के दरमियान कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि दिस न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिव ओनली आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 10 raised to power minus 15 meters, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस. यानी दो प्रोटॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स खाली होगा कहां पर? जब वो न्यूक्लियंस कहां पर होंगे? न्यूक्लियस में. आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर विल बी नो न्यूक्लियर फोर्स. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स is a saturated force. Nuclear force is a saturated force. Nuclear force is a saturated force. एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों, ये है सैचुरेटेड फोर्स. सैचुरेशन जानते हो क्या होता है? किसी जगह हमें 10 पोस्ट है, वहां हमें 20 लोग आ गए, इसका मतलब है वहां सैचुरेशन हो गई. किसी स्कूल में 10 टीचर्स है, 10 टीचर्स को काम करना है किसी स्कूल में, लेकिन उस स्कूल में 50 टीचर्स है. अब और टीचर्स नहीं आएंगे क्योंकि 10 से ऑलरेडी 4 गुना वहां टीचर्स है. इसका मतलब है दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन. यहां पर दूसरा है कि न्यूक्लियर फोर्स से सैचुरेटेड फोर्स क्या होता है? ये जो न्यूक्लियन न्यूक्लियस में है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, ये इसके इर्द गिर्द न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां पर है, एक न्यूट्रॉन यहां पर है, एक न्यूट्रॉन यहां पर है. ये जो न्यूक्लियस है, इसमें जो ये न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियन जो है ये इंटरैक्ट करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है खाली उन्हीं न्यूक्लियंस पे जो इसके नेबरहुड में होंगे. ए न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस can interact only with those nucleons which are its nearest neighbors, while as the other nucleons they are not influenced by it. एक न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस में है, वो न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करता है खाली उन्हीं न्यूक्लियंस के दरमियान जो न्यूक्लियंस इसके नेबरहुड में होंगे, वेरी नियर टू इट. जो बाकी न्यूक्लियंस है उन पे ये इन्फ्लुएंस नहीं करता. इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम दीस न्यूक्लियंस. इसीलिए जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये है क्या फोर्स? शाबाश, इट्स अ सैचुरेटेड फोर्स. इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स जो है ये है नॉन सेंट्रल फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स. आपको पता है जो कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स है सेंट्रल फोर्स. कूलम फोर्स क्यों सेंट्रल फोर्स है? क्योंकि कूलम फोर्स जो है वो एक्ट होता है along the line joining the centers of two charges. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है सेंट्रल फोर्स, because gravitational force always acts along the line joining the centers of the two masses. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है. It does not act along the line joining the centers of two nucleons. इसीलिए ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये एक्ट नहीं होता है उस लाइन पे जिस लाइन ने दो न्यूक्लियंस के सेंटर्स जो है वो ज्वाइन किए, उस लाइन पे ये एक्ट नहीं होता है. इसीलिए जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये है नॉन सेंट्रल फोर्स. दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 6, न्यूक्लियर फोर्स जो है ये है स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. ये क्यों है स्पिन डिपेंडेंट फोर्स? देखने में आया है कि अगर दो न्यूक्लियंस के स्पिन्स पैरेलल होंगे, यानी उनके स्पिन्स होंगे सेम डायरेक्शन में,
जो उन दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज्यादा होगा अगर ये दो न्यूक्लियॉन्स, इनके स्पिन्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल. Nuclear force between two nucleons having parallel spins is greater than the nuclear force between two nucleons having anti-parallel spins. इसीलिए ये जो nuclear force है ये spin dependent force है. It's a spin dependent force. Nuclear force is what? It's a spin dependent force. Nuclear force is a spin dependent force. इसके बाद property number 7. Property number 7 कह रही है ये जो nuclear force है, nuclear force is an exchange force. Is an exchange force. Nuclear force is an exchange force. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की. न्यूक्लियर फोर्स जो है ये है एक्सचेंज फोर्स. यहां पर एक्सचेंज फोर्स का मैं माने अभी बताऊंगा आपको. आई विल टेल यू व्हाट इज द उसको बोलेगा. न्यूक्लियर फोर्स जो है ये है एक्सचेंज फोर्स. क्यों है एक्सचेंज फोर्स? देखो मैं बताऊंगा कि मैं एक्सचेंज फोर्स है. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एग्जिस्ट कैसे होता है? इन दो न्यूक्लियॉन्स फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है. इन दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये फोर्स एग्जिस्ट होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड mesons. What are these called as? Mesons or they are called as pi mesons. दो पार्टिकल्स के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो फोर्स एग्जिस्ट होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज. Due to continuous exchange of some kind of particles, these particles are called as mesons. These two nucleons they continuously exchange some kind of particles. These particles are called as mesons. Due to this exchange, these nucleons they remain bound to each other. Let me explain you this. आप लोग दोनों खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ. Come on यार, come on यार, कुछ दे दो मुझे, खड़ा हो जाना, कुछ दे दो भाई इधर. फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे दिखाऊंगा हाउ दीज न्यूक्लियॉन्स रिमेन बाउंड टू ईच अदर. यहां पर एक न्यूक्लियॉन है, यहां पर दूसरा न्यूक्लियॉन है, ठीक है ना. सपोज ये उतारो ना, उतारो ये, बोलो सीधो. देखो मैं आपको न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन करूंगा, चलो ना. ये समझो ये वाल्व है, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है ना. आगे आगे आ जाना मेरे साथ, हंसना नहीं. डोंट लाफ इन द क्लास, आई विल थ्रो यू आउट. These are the two nucleons in front of me. I will show you how these nucleons exert nuclear force on each other by exchanging some kind of particles. These particles are called as what? Mesons. See, suppose these are the two dogs. They are the two dogs in front of me. This dog has a piece. These are the two dogs in front of me. This dog has a piece of bone. This dog has a piece of bone in his mouth. Now this is the another dog. This another dog will try to take this bone from this dog. What this dog will do? This dog will also apply a force on this bone. This bone. That means when this dog will apply a force on this bone keeps on exchanging. This bone keeps on exchanging between this dog and this dog. In this way, these two dogs they remain bound to each other by exchanging what? By exchanging a bone from each other. ठीक है ना. मकबूल साहब इधर आओ पहले. आप ये दिखा नहीं रहे हो, बैठ में करो. अजीज साहब बोलो क्लास है, डोंट डिस्टर्ब क्लास से. उसको बोलो वेट करो. देखो भाई फिर से. These are the two dogs. ठीक है ना. हंसना नहीं, ये मेरे दो बच्चे हैं, सबसे प्यारे बच्चे हैं. ये एक डॉग है, ये दूसरा डॉग है. ये देखो इसके चेहरे में इसने बोन उठाई, हड्डी उठाई. Now ये दूसरा डॉग है. This dog is seeing the bone on the mouth of this dog. Now this dog will try to snatch the bone from this. ठीक है ना. It will try to snatch the bone from this. This dog will again come. This will try to snatch the bone from this dog. In this way, this bone keeps on exchanging between these two dogs. It means that by exchanging this bone, these two dogs they remain bound to each other. Same is the case in the nuclear forces. In the nuclear forces, the two nucleons continuously exchange some particles called pi mesons between each other. Due to the exchange of these pi mesons, these two nucleons they remain bound to each other. ठीक है ना. चलिए. Now see here. तो आपने अभी देखा
हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, these nucleons are surrounded by these pions. These pions are they are also called as pi mesons. There are 3 types. कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के. एक होता है न्यूट्रल पाई मेजॉन, यानी न्यूट्रल पायन, या उसको कहते हैं न्यूट्रल पाई मेजॉन. न्यूट्रल मींस उसकी चार्ज उधर 0 मैंने रखी है. उसके बाद होता है पॉजिटिव पायन, या उसको कहते हैं हम पाई प्लस मेजॉन. उसके बाद होता है नेगेटिव मेजॉन, दैट इज पाई माइनस मेजॉन. पाई माइनस मेजॉन, ठीक है ना. एक होता है आपका न्यूट्रल पाई मेजॉन, दूसरा है पाई प्लस मेजॉन, तीसरा होता है व्हाट? पाई माइनस मेजॉन. नाउ क्या होता है? these mesons they are continuously exchanged between the nucleons, between the 2 nucleons inside the nucleus. This gives rise to an exchange force between 2 nucleons, and that exchange force is called as what? Nuclear force. So this exchange of pi mesons, this gives rise to a new theory of nuclear forces that is called as meson theory. What is that called as? Meson theory of nuclear forces. Meson theory of nuclear forces. Meson theory of nuclear forces. This theory was basically given by Yukawa. This is called as Yukawa theory of nuclear forces. ठीक है ना? So there is a continuous exchange of these mesons between 2 nucleons inside the nucleus. Due to this continuous exchange of mesons, these nucleons, they remain bound together inside the nucleus by an exchange force which we call as what? Nuclear force. Second point, inside a nucleus, a proton is never permanently a proton. एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है, परमानेंटली ये कभी न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं होगा. या एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है, इट कैन नेवर रिमेन परमानेंटली एज न्यूट्रॉन. Inside the nucleus, these protons and neutrons, they continuously keep changing into one another. A proton gets converted into neutron, a neutron gets converted into proton. This is the second point. Inside the nucleus, a proton is never permanently a proton. A neutron is never permanently a neutron. They keep on changing. They keep on changing into each other. Proton जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा. अब जो आपका n फोर्स है, न्यूट्रॉन फोर्स, 2 न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, दिस ओकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ neutral pion. This occurs due to exchange of neutral pion between the 2 nucleons. This occurs due to the exchange of neutral pion between the 2 nucleons. ये जो न्यूट्रॉन फोर्स है, ये ओकर होता है due to exchange of what? Neutral pion between the 2 nucleons. 2 न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा, वो क्या है? शाबाश, वो कौन सा पार्टिकल है? शाबाश, वो है न्यूट्रल पायन. देखो कैसे, न्यूट्रॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस पाई मेजॉन. ये जो है यहाँ पाई मेजॉन जो है ये एमिट हुआ, एमिशन ऑफ पाई मेजॉन. यहाँ पाई मेजॉन जो है, न्यूट्रल पाई मेजॉन जो है वो यहाँ इमिट हुआ है. ठीक है ना? या ऐसी न्यूट्रॉन जो है वो इस न्यूट्रॉन से इसने पाई मेजॉन लिया, लेकिन इसका मतलब है ये इमिट हुआ है पाई मेजॉन यहाँ पर. या ऐसे ये न्यूट्रॉन है, इसकी 0 चार्ज है, यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किया पाई मेजॉन. चार्ज पे कोई फर्क पड़ा? चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो यहां से निकलेगा हमें न्यूट्रॉन. एक न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा पाई नॉट, पाई 0 मेजॉन. जब वो एब्जॉर्ब करेगा पाई 0 मेजॉन, फिर उससे क्या निकलेगा? हमें वापस न्यूट्रॉन निकलेगा. यहां हुआ है एब्जॉर्प्शन, यहां हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई 0 मेजॉन, वहां हुआ है एमिशन ऑफ पाई 0 मेजॉन. दो न्यूट्रॉन्स जो है उनके दरमियान जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो कौन सा है? शाबाश, वो कौन सा बच्चा? वो है पाई न्यूट्रल पाई मेजॉन, न्यूट्रल पाई मेजॉन, या सीधे हम कहेंगे न्यूट्रल पायन. ठीक है ना? यहां पर न्यूट्रॉन ने इसको इमिट किया है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा. यहां चार्ज 0 है, यहां चार्ज 0. यहां पर इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया है. ठीक है ना? यहां पर इसने इसको एब्जॉर्ब किया है. इसके बाद प्रोटॉन जो होंगे, 2 प्रोटॉन्स जो होंगे, 2
प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी ओकर होगा ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल पायन, वो भी होगा ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ व्हाट, न्यूट्रल पायन, क्योंकि चार्ज जो है उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो ये प्रोटॉन है, ये हो गया प्रोटॉन प्लस पाई जीरो मेजॉन, यहां पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, यहां पर क्या है पॉजिटिव, इसकी चार्ज क्या है जीरो, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां पर पाई मेजॉन जो है वो इमिट हुआ है, या ऐसे लिखेंगे प्रोटॉन प्लस इसने एब्जॉर्ब किया पाई न्यूट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज पे कोई असर नहीं, आपको फिर प्रोटॉन निकला, ठीक है ना। सो यहां पर एब्जॉर्ब हुआ पाई, इमिट हुआ है पाई जीरो मेजॉन, यहां पर क्या हुआ एब्जॉर्ब हुआ। वो दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा वो कौन सा होगा, न्यूट्रल पाई मेजॉन। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो होते हैं चार्जड पायॉन्स। क्या होते हैं चार्जड पायॉन्स, चार्जड पायॉन्स यानी पाई प्लस और पाई माइनस, दो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स, दो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे वो पार्टिकल होंगे चार्जड पायॉन्स, यानी या पाई प्लस या पाई माइनस। देखो कैसे, ये प्रोटॉन है, इसकी चार्ज क्या है पॉजिटिव, ये देगा हमें प्रोटॉन प्लस पाई मेजॉन प्लस पाई माइनस मेजॉन, प्रोटॉन प्लस पाई माइनस मेजॉन। हेलो, यहां पर मैंने गलत किया, ये देखो यहां पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स जो है वो ओकर हो जाएगा ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ व्हाट, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई प्लस और पाई माइनस मेजॉन। देखो कैसे, सपोज प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हुआ इनटू न्यूट्रॉन, लेकिन चार्ज यहां पर क्या है पॉजिटिव, यहां पर क्या है जीरो चार्ज, तो यहां पर इसके साथ जरूरी क्या निकलेगा पाई प्लस, पाई प्लस, ठीक है। या अगर न्यूट्रॉन हो गया कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, यहां पर क्या चार्ज है जीरो, यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर जो इमिट होगा, जो मेजॉन इमिट होगा वो होगा पाई माइनस, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ आई। सो व्हेन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, between proton and neutron or neutron and proton occurs due to exchange of what, pi plus or pi minus meson, ठीक है ना, बात समझ आई, बात समझ आई ना। Let us now move to the another question. These were some of the important points in meson theory of nuclear forces. अब हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फिजिक्स में आगे जाना चाहते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाना चाहते हो, तो मास डिफेक्ट आपको हमेशा रास्ते में आएगा। देखो बच्चों, आपका जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज मेड ऑफ, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन को अपनी मास है, न्यूट्रॉन को अपनी मास है, ठीक है ना। दिस न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, ये बाउंड स्टेट में होते हैं, बिकॉज दे आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका जो फ्री स्टेट होता है, फ्री स्टेट मींस सपोज जो प्रोटॉन है, दिस इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज देयर फ्री स्टेट। बाउंड स्टेट इनका है जब ये कहां पर है, न्यूक्लियस। देखो, अगर हमें ये जो प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स है, अगर हम इनको लाएंगे when they are brought close to each other to form a nucleus, what happens? जब हम प्रोटॉन्स को नजदीक नजदीक लाएंगे, क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए। जितना हम प्रोटॉन्स को नजदीक लाएंगे उतना उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। देखो फॉर एग्जांपल दीज आर द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। सपोज ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है, आई विल ब्रिंग दीज प्रोटॉन्स क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। जैसे मैं इन प्रोटॉन्स को नजदीक लाऊंगा, in order to form a nucleus, what happens? There occurs a strong repulsion between them.
which will not allow these nucleons to come close to each other. अब मैं इनको क्लोज तब ला सकता हूं जब मुझे कोई वर्क करना होगा किसके खिलाफ, रिपल्शन के खिलाफ. यानी देयर मस्ट बी सम एनर्जी which energy will eliminate the repulsion between the two protons, between the two nucleons. ठीक है ना? वो एनर्जी कहां से आती है? When these two nucleons, when these nucleons are brought together to form a nucleus, some of their mass disappears. इनकी कुछ मास जो है वही कन्वर्ट होती है किसमें, एनर्जी में. देखो, when these nucleons are brought together to form a nucleus, there occurs a strong repulsion. Now, in order to overcome this repulsion, what happens? Some of the mass of these nucleons gets converted into energy. This energy eliminates that repulsion. ठीक है ना? This energy eliminates that repulsion. इसका मतलब है जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है, इनका जो मास जो होगा that will be larger. जो इनका मास का सम होगा, किनका, इन न्यूक्लियंस का मास का सम होगा जब ये न्यूक्लियस के बाहर होंगे. दैट मींस फ्री स्टेट में होंगे. दैट विल बी ग्रेटर देन देयर मास व्हेन दे विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस. क्यों? न्यूक्लियस में जाने के लिए इनकी कुछ मास किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में, इन ऑर्डर टू ओवरकम रिपल्शन. इनका मतलब है इन की मास. यानी इफ these nucleons are outside the nucleus, then the sum of their mass is greater than the sum of their mass when they are inside the nucleus. This difference in mass, that is called as mass defect. हम ऐसे कहेंगे, the difference between the rest mass of the nucleus, that means the mass of the nucleons present inside the nucleus, ठीक है ना, is the difference between the rest mass of the nucleus and the sum of the masses of the nucleons, and the sum of the masses of the nucleons composing the nucleus in their free state is called as what? Mass defect. The sum of rest mass of nucleus, जो mass of nucleus होती है वो होती है mass of the nucleons, mass of protons plus mass of neutrons. जो mass of protons plus mass of neutrons inside the nucleus है, that is always less than the sum of the mass of protons and neutrons in their free state, यानी outside the nucleus. That difference in mass is called as mass defect. तो हम इसको ऐसे भी define कर सकते हैं, the difference between the rest mass of the nucleus, यानी हम कहेंगे उसको actual mass of the nucleus, ठीक है ना, and the sum of masses of nucleons in their free state, that is called as what? Mass defect. ये mass defect क्यों ओकर होता है? क्योंकि जब when these nucleons are brought close together, when their nucleons are brought close together to form a nucleus, there occurs a large repulsion. In order to overcome their repulsion, some mass of these nucleons is converted into energy. Therefore, when they reach inside the nucleus, their mass will be less than their mass when they are in the free state. That difference of mass is called as mass defect. Let us calculate this mass defect. Suppose we have a nucleus XZA. हमारे पास एक न्यूक्लियस है XZA, ठीक है ना, consisting of Z protons and A minus Z neutrons. हमारे पास एक न्यूक्लियस है which consists of शाबाश Z protons and A minus Z neutrons, ठीक है ना. सपोज एक प्रोटॉन जो है उसकी मास जो है वो है mp. mp is equal to mass of one proton. mm जो होगा वो है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. mm जो होगा वो है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है ना. सपोज कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस. कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है उनके मास का एडिशन, ठीक है ना. हमें कितने प्रोटॉन्स है? Z प्रोटॉन्स. एक प्रोटॉन का मास कितना है? mp. एक न्यूट्रॉन का मास कितना है?
Therefore, mass of Z protons. Therefore, mass of Z protons is equal to ZMP. मास ऑफ Z प्रोटॉन्स कितना होगा? ZMP. वो होगा मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसी तरीके से मास ऑफ A माइनस Z प्रोटॉन्स, मास ऑफ A माइनस Z प्रोटॉन्स वो होगा मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होगा A माइनस Z इंटू Mn. मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी A माइनस Z इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. मास ऑफ वन न्यूट्रॉन क्या है बच्चा? Mn. नाउ सपोज डेल्टा M जो है वो है मास डिफेक्ट. डेल्टा M क्या है भाई? मास डिफेक्ट. तो भाई आपको यहां पता है जो मास ऑफ Z प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स वो होगा ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस. चूंकि ये फ्री स्टेट में है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस है, ठीक है ना. तो ये इन दो का एडिशन जो होगा वो होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा. उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट. हम लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ Z प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना. तो डेल्टा M जो होगा वो होगा ZMP, क्योंकि मास ऑफ Z प्रोटॉन जो है वो है ZMP प्लस मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स वो होगा A माइनस Z इंटू Mn माइनस कैपिटल M. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले होना पता चाहिए क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं. एक प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है. प्रोटॉन के मासेस और न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करके उन न्यूक्लियर मास जो है वो उसको सबट्रैक्ट करना है. ठीक है ना. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. देखो भाई, आपको पता है inside the nucleus these protons and neutrons which we call as nucleons, they are bound together by a strong nuclear force. अगर मुझे इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा, I have to do lot of work against these nuclear forces, because nuclear forces are strong short range forces which keep these nucleons bind together inside the nucleus. Now अगर मुझे इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा, बहुत एनर्जी की जरूरत है which will overcome the nuclear force. That energy which is required to break these nucleons into its constituent parts. What are the constituent parts? Constituent parts are the nucleons. The energy required to break the nucleus into its constituent nucleons, protons and neutrons, and then to place these nucleons at infinite separation from one another. That energy is called as binding energy. आपको पता है न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है they are bound together by a strong nuclear force. अब अगर हमें इस न्यूक्लियस को तोड़ना होगा, हमें बहुत एनर्जी की जरूरत है, जिस एनर्जी से वो अट्रैक्शन जो है वो खत्म होगी और न्यूक्लियस ब्रेक होगा. जब ये ब्रेक होगा, दिस विल गेट ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. उसके बाद इन न्यूक्लियॉन्स को हम इनफिनाइट सेपरेशन पे रखेंगे, सो दैट नो काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन देम. क्योंकि जब ये इंफिनिटी पे होंगे ना, देयर विल बी नो रिपल्शन बिटवीन देम, देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, देयर विल बी नो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम. ठीक है ना. वो एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. The energy required to break the nucleus into its constituent nucleons and then to place them at an infinite distance from one another. That is called as binding energy of nucleus. एक तो न्यूक्लियस ब्रेक करना है
उसके बाद जो ये न्यूक्लियॉन्स है इनको कहां रखना है? एट एन इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। लेट अस सपोज वो एनर्जी जो है दैट इज k मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम कहेंगे e मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज वो एनर्जी जो है दैट इज e मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मुझे इन न्यूक्लियॉन्स को वापस लाना होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यूक्लियस, मुझे इतनी ही एनर्जी की जरूरत है, तो दूसरी डेफिनेशन आएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड to hold the nucleons, to bind the nucleons together inside the nucleus, that energy is also called as what? Binding energy. मैंने यहां बोला the energy required to break the nucleons, nucleus को तोड़ो, the energy required to break the nucleus into its constituent nucleons, into its constituent parts, protons and neutrons, and then to place these protons and neutrons at an infinite distance from one another, that is called as binding energy. Suppose वो e मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी ही एनर्जी वापस लगेगी मुझे ये न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें देखना है ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहां से आएगी। ये तो अजीज साहब नहीं देगा ना वहां से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, या तो मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो यहां खड़ा बैठा हूं। ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है ये वहीं से न्यूक्लियस में से ही या न्यूक्लियॉन्स में से ही कहीं से आनी चाहिए। देखो जब हम इन न्यूक्लियॉन्स को ला रहे हैं, क्या बनाने के लिए? न्यूक्लियस बनाने के लिए। जो इनकी मास है, इनकी कुछ मास डिसअपियर होती है। अभी आपने पढ़ा मास डिफेक्ट में, जब ये न्यूक्लियॉन्स, when these nucleons are brought together to form a nucleus, जब इन न्यूक्लियॉन्स को हम कहां लाएंगे? when these nucleons are brought together to form a nucleus, there occurs a large repulsion. To overcome this repulsion, some mass of the nucleons gets converted into the energy. It means that there occurs a difference of mass. Between the nucleons present in the nucleus and the nucleons when they are in the free state. It is this energy, it is this mass which appears in the form of energy as per the Einstein's mass energy relation, E is equal to delta mc square. चूंकि जो ये difference in mass है, that difference in mass is called as mass defect, है ना? mass defect. It is this mass which disappears, that is, it is this mass defect which gets converted into the energy as per the relation E is equal to delta mc square. And this energy which we get here, this energy is responsible for binding the nucleons together inside the nucleus, because this energy will overcome the repulsion. This energy will overcome the repulsion between the protons, and this energy is responsible for binding these nucleons together inside the nucleus. ठीक है ना? Therefore, this energy is called as binding energy of nucleus. This energy is called as what? Binding energy of nucleus. Therefore, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, binding energy will be equal to delta mc square. ठीक है ना? ये जो एनर्जी थी, what is this energy? This is basically the energy equivalent of mass defect. है ना? This is the energy equivalent. आपने कल मास दिया था 1 AMU, जब आपने मास दिया था 1 AMU, तो आपको जो यही रिलेशन यूज करने से जो एनर्जी निकली थी वो निकली थी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 1 AMU के बदले क्या मास है? डेल्टा एम। सो दिस एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। व्हाट इज दिस एनर्जी कॉल्ड? बाइंडिंग एनर्जी। तो तीसरी डेफिनेशन निकली बाइंडिंग एनर्जी की, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। Energy equivalent of mass defect, that is called as binding energy of what? Binding energy of nucleus. Energy equivalent of mass defect, जो mass defect occur होता है न्यूक्लियस बनाने में, न्यूक्लियॉन्स को क्लोज लाने के लिए, ठीक है ना, जो वहां पर मास डिफेक्ट अपियर होता है, वही मास डिफेक्ट, जो उसी मास डिफेक्ट का जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगा, जब वही मास डिफेक्ट कन्वर्ट होगा इनटू एनर्जी में, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सो एक और डेफिनेशन, the energy equivalent of mass defect is called as what? Binding energy of nucleus. Let us write down the expression for it. आपको यहां निकला, क्या निकला आपको? शाबाश, आपको जो बाइंडिंग एनर्जी निकली वो निकला आपको डेल्टा एम सी स्क्वायर। यानी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना है?
डेल्टा एम, मास डिफेक्ट निकालना है, ठीक है ना। सपोज बच्चों यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियस XZ है, XZA is a nucleus having Z protons and A minus Z neutrons। यहां देखो, सपोज यहां पर मेरा ये एटम है, ये इसका ये न्यूक्लियस है XZA। इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? Z प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A माइनस Z न्यूट्रॉन्स। सपोज बच्चों एक प्रोटॉन की मास जो है वो है mp, mp इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। इसी तरीके से mn इज इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। शाबाश। कैपिटल M में लूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस, वो मास ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की मास, ठीक है। MXZA, यहां पूरा देखो MXZA, ये जो एटम है इसमें खाली न्यूक्लियस ही नहीं है, इस एटम को अपना मास होगा। सपोज इस एटम को जो मास है वो है M। व्हाट इज MXZA? MXZA, दिस इज द मास ऑफ एटम। MXZA इज इक्वल टू मास ऑफ एटम। अब आपका एटम जो होगा, इस एटम में खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Me इज इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जरा यहां मुझे एटम की मास किसके बराबर होगी? एटम की मास होगी मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। जब मास ऑफ न्यूक्लियस को उन इलेक्ट्रॉन्स की मास जमा करेंगे तो आपको निकलेगा मास ऑफ एटम, है ना। अब देखो डेल्टा M इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। डेल्टा M जो है दैट इज मास डिफेक्ट। तो आपको पता है डेल्टा M, आपने आज ही देखा, डेल्टा M हो गया बराबर मास ऑफ Z प्रोटॉन्स। व्हाट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन? MP। व्हाट इज मास ऑफ Z प्रोटॉन्स? ZMP। वेरी गुड, this will be ZMP plus mass of A minus Z neutrons, क्योंकि उस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स है? A minus Z। this will be equal to A minus Z, शाबाश, A minus Z Mn minus mass of nucleus, what is that? M। उठा भाई उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, बाइंडिंग एनर्जी वाली इक्वेशन में, तो क्या निकलेगा आपको? बाइंडिंग एनर्जी, शाबाश, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा आपको, शाबाश, बहुत जल्दी किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, डेल्टा M का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ZMP प्लस, शाबाश, A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। बाहर क्या है भाई? C स्क्वायर। रखो इसको नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो इसको नाम। चलिए इस इक्वेशन के RHS को ऐड भी करेंगे ZME, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ZME, यानी मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसमें Z प्रोटॉन्स है, Z क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है? Me। तो Z इलेक्ट्रॉन्स की मास कितनी होगी? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग RHS बाय ZME, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग RHS बाय ZME। तो ये क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, शाबाश, बोलो क्या बनेगा? शाबाश, ZMP, शाबाश, प्लस प्लस इसको ऐड करेंगे यहीं पे ZME, कोई फर्क नहीं, मुझे ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट करना। देखो सब्ट्रैक्ट कहां पर करूंगा मैं? प्लस लिखूंगा मैं A माइनस ZMN, माइनस लिखूंगा मैं M, माइनस उधर लिखूंगा मैं ZME, ZME इंटू C स्क्वायर, ZME इंटू C स्क्वायर। अब यहां देखो भाई क्या करेंगे हम, पहले दो टर्म जो है इनमें Z कॉमन आएगा, आएगा ना कॉमन, ये निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z कॉमन निकालो MP प्लस ME, ठीक है, प्लस A माइनस Z MN, लास्ट टर्म उसको माइनस कॉमन निकालो, ये निकलेगा M प्लस ZME इंटू C स्क्वायर, शाबाश, इंटू C स्क्वायर। आपके पास एक ही एटम है जिसके न्यूक्लियस में
न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप? प्रोटियम। उसके न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन है, ठीक है, तो उस एटम में खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा। उस एटम का मास जो होगा वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, तो जब आपको ऐसी एक सिचुएशन आएगी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हैं इसको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। बट Mp प्लस Me जो होता है वो होता है Mh, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। अब देखो व्हाट इज M? मास ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज ZMe? मास ऑफ Z electrons. Mass of Z electrons plus mass of nucleus, that will be equal to mass of atom. तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, M plus ZMe, that will be small m into XZA, यानी mass of atom. M plus ZMe is equal to MZXA, that is mass of atom. ठीक है ना। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो भाई इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा ये? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, शाबाश, ZMH, ठीक है ना, प्लस A माइनस ZMN प्लस A माइनस ZMN, ठीक है, A माइनस ZMN माइनस MXZA इंटू, शाबाश, इंटू C स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। किसके बराबर निकली? शाबाश, बाइंडिंग एनर्जी निकली आपको ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस MZXA इंटू C स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूसरा एक्सप्रेशन, वो भी पहला वाला भी है और ये भी है इसका एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर हम इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ओ भाई ये एटम है, सपोज इस एटम का जो न्यूक्लियस है इसका मास नंबर जो है A, मास नंबर A मींस इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, इसमें बेसिकली कितने न्यूक्लियॉन्स है। अगर मैं इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करूंगा बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मींस मैं ऐसे लिखूंगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय A। व्हाट इज A? व्हाट इज A? मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जरा ये किसके बराबर निकलेगा? ZMH, शाबाश, प्लस A माइनस ZMN माइनस, शाबाश, M इंटू XZA इंटू C स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। तब मुझे ये निकला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या निकला? जब मैं इसको A से डिवाइड करूंगा ये निकला मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। अगर मैं ये न्यूक्लियन 1 लूंगा, अगर मैं न्यूक्लियन 1 लूंगा तो उस वक्त क्या मैं कहूंगा? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी required to extract one nucleon. Binding energy per nucleon is the binding energy. Binding energy per nucleon is the binding energy. Yeah, simply binding energy per nucleon is the energy. Is the energy required to extract कितने nucleons? One nucleon from the nucleus. देखो एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी लगेगी, that energy is called as binding energy per nucleon. जितना ये ज्यादा होगी, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, उतना ये एटम ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ये ज्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। समझ आई बात? जितना ये ज्यादा होगी उतना जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। क्यों? अगर ये ज्यादा होगी इसका मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा न्यूक्लियन निकालने के लिए। इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी रही बाइंडिंग एनर्जी करो वो कल करेंगे।